Happy DJ Remix. मैं बारबी बंबोला वंग वर्गी पहाड़ दी मैं कोल हानिया हुए मैं बारबी बंबोला वंग वर्गी पहाड़ दी मैं कोल हानिया हो बैल कणिया फराक मेरी भिज गई ओए 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 हो बैल कणिया फराक मेरी भिज गई चुबारे विच बोल हानिया नार पतली पतंग पाले मर गई बिछेती कुंडा खोल हानिया लकड़ी दी पौड़ी उत्तों गई मैं तिलक वे वक्खी कोलों लै
ही नवाबी है मान बेईमान में का सिर धक बाबी है की दसा एदा सारा पिंड ही नवाबी है किते मिल के बचोला डांग मार के मैं सिर दे मैं खोल हानिया पैन कनिया फराक मेरी भिज गई ओए 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 ओ पैन कनिया फराक मेरी भिज गई चुधारे बिच बोल हानिया होवे मैं बार भी बंबोला वांग वर्गी पहाड़ दी मैं कोल हानिया वे मैं बार भी बंबोला वांग वर्गी पहाड़ दी मैं कोल हानिया आ ओ नार पतली पतंग पाले मर गई बेचेती कुंडा खोल हानिया ओ नार पतली पतंग पाले मर गई बेचेती कुंडा खोल हानिया चिप्सी काली शौक सोहणीए यारां दा फोर्ड बलैती किले 40 फोर्ड बलैती किले 40 दौरा फुल सरदारां दा चिट्टा चादरा चिप्सी काली शौक सोहणीए यारां दा ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸੁਖਾਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਬੜਕ ਐ ਜੱਟੀਏ ਮਾਰਦਾ ਬੜਕ ਐ ਜੱਟੀਏ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰਾਲਾ 36 ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਬਿੱਲੋ ਬੀਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਬਿੱਲੋ ਬੀਚ ਤੇ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰਾਲਾ 36 ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰਾਲਾ 36 ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਪਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਪਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਤੀ ਹਰ ਨੱਕ ਤੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰਾਲਾ 36 ਟਾਇਰਾਂ ਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਬਿੱਲੋ ਬੀਚ ਤੇ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰਾਲਾ 36 ਟਾਇਰਾਂ ਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰਾਲਾ 36 ਟਾਇਰਾਂ ਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕਲਿੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਵਿਊ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੁਟਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕਲਿੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕਲਿੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਟੇਲਿਆਂ ਤੇ ਖੋਪੇ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾਪਣ ਬਹਿ ਗਏ ਫਣ ਸੱਪ ਦਾ ਹੋਸਟ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੱਸਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਰਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਦਾ ਹਲਕ ਨੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਓਏ ਹਲਕ ਨੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕਲਿੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਵਿਊ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੁਟਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕਲਿੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਐਲੀ ਮਾਂਗਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਐਲੀ ਮਾਂਗਣ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕੰਮ ਜਦ ਡੀਜੇ ਸਾਂਵਲੇ ਫੇਰ ਛੇੜ ਲੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿੱਤਰੋ ਫੋਟੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੋਹਾਲੀਓਂ ਪਾ ਜਰਸੀ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਓ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿੱਥੇ ਫਰਦੇ ਨੇ ਰੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕਲਿੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕਲਿੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਵਿਊ ਮੁਟਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਕਲਿੱਕਾਂ
ਜਦ ਤੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਖੁਰਦੀ ਜਦ ਤੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਖੁਰਦੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਓਏ 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 ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਤਪ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਬਣਦੀ ਐ ਇਹ ਪੇਸੀ ਗੁੜਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਲਹਿੰਗਾ ਫੱਬੀ ਦਾ ਦੇਖ ਚੌਵਨ ਤਿੱਤਰੀ ਬੱਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸਗੀ ਦਾ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਲਹਿੰਗਾ ਫੱਬੀ ਦਾ ਦੇਖ ਚੌਵਨ ਤਿੱਤਰੀ ਬੱਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁਹੱਲੇ ਮਾਨਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਓਏ 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 ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ले नस के किसे बतिया बतारू हंस हंस के मन कर तारी कट ले नस के हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तू हमारा के चाहेलू ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो हमारा के चाहेलू ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो तू हमारा चाहेलू ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था।
डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह उन्हें हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब दर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहां भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहां आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं, और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कांटेक्ट करता है, और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्वन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्वन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेल्वन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उससे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं।
इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहां मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था। इसे लेकर काफ़ी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।